Chelsea fans in the last 10 days have suffered a Reece James injury, most probably ruling him out, for the rest of the season. They have suffered a humiliating defeat against PSG in the round of 16 of the Champions League, जहाँ पे PSG beat us 5-2 at their home and 3-0 at Stamford Bridge, which makes it 8-2. 8-2, which is our worst ever defeat in a Champions League knockout match on aggregate. ठीक है? And then we have also suffered a loss to Newcastle at our own home, which is very detrimental for our top four race. So being a Chelsea fan is not easy, when it comes to these sort of things, because so much is going on at the club. And me personally, I could not even catch the Champions League knockout matches because मेरा बहुत important कुछ था अपने पर्सनल लाइफ में, एंड इट वाज दिस वीक, एंड यू वुड हैव नोटिस कि मेरी कोई वीडियो आई भी नहीं थी लास्ट 10-15 डेज से, आई थिंक. तो अब वो खत्म हो चुका है, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टॉकिंग अबाउट व्हाई चेल्सी फुटबॉल क्लब इज डेड. एंड आई एम गोइंग टू लिस्ट आउट 5 रीजंस जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा डेट्रीमेंटल है इस फैक्ट को जस्टिफाई करने के लिए, एंड लेट मी नो इफ यू अग्री विद देम और नॉट down below in the comments. And without wasting any more time, let's get straight into the first reason. The first reason would be inexperience. ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, मैं बस जो मेरे दिमाग में जैसे आ रहा है 5 रीजंस वो मैं बोलता रहूंगा. तो पहला है इनएक्सपीरियंस, एंड आई थिंक ये पूरी दुनिया जानती है. इट्स नॉट इवन लाइक कि राइवल फैंस तक नो कि ये चेल्सी में प्रॉब्लम है, इनएक्सपीरियंस का इशू रहता है चेल्सी में. ठीक है, एंड व्हाट इज रॉन्ग विद दिस इज कि आपके पास चलो 5-6 वर्ल्ड क्लास टैलेंट के प्लेयर्स हैं आपके पास, यंग टैलेंट इज कमिंग इन, बट देयर इज नो वन टू लुक अप टू. देयर इज नो वन जो कि उस ड्रेसिंग रूम में देख के बोल सकता है कि हाँ, इस बंदे ने किया हुआ है अपनी लाइफ में, इस बंदे ने अचीवमेंट्स करी है, इस बंदे ने बिग ट्रॉफीज जीती है, इस बंदे ने प्रेशर के अंडर ऑपरेट किया हुआ है. कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं है. And if you are going to talk to me about age inexperience, then I would like to point out that yes, Tosin is 26 or 27, whatever he is, but that is not the sort of experience Chelsea needs. He has no taste of winning any trophy. Tosin is a liability, even though he is the most aged player in that Chelsea dressing room, but he is the most liability. He is the most, I would say the worst liability as well in that Chelsea dressing room. And that is what I mean. Experience is defined by playing under pressure moments, also by age. I agree, when you have reached a certain age, when you have played a certain level, but Tosin is not the example for that. He is not the example for that, भाई. And इसीलिए ये चेल्सी की स्क्वाड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लैक करते हैं, बिकॉज जितनी भी हमने सक्सेसफुल टीम्स देखी हैं थ्रू आउट द डेकेड्स, थ्रू आउट द इयर्स, वो कैसे ऑपरेट करती है कि yes, there is a core of young players and then there is a bigger core of experienced players जो कि nurture करते हैं young players को to take over eventually, right? But Chelsea में वो चीज है ही नहीं. Which brings me to the second reason why Chelsea Football Club is dying or it is dead. It is discipline. And yes, it is very very interlinked, because अगर आप देखोगे हमने कितने yellow cards लिए हमने, I think in the last 2 to 3 seasons including this one, we have almost taken above 100 yellow cards in each season, which is the worst of any team, or amongst the worst. Then that is diabolical, that is pathetic. What sort of a discipline is this? And मैं तो भी बात भी नहीं कर रहा हूँ जो हमने रेड कार्ड्स लिए इस सीजन. The amount of red cards we have taken is absolutely shambolic, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा मैच थ्रो अवे हो गया, जिसकी वजह से हमारे पॉइंट्स इतने ज्यादा ड्रॉप हुए हैं यार. डू यू रियलाइज दिस? एंड ये कहां से आता है? बिकॉज आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है टीम में, आपके पास कोई कूल हेड नहीं है पिच पे जो कि इन यंग हॉट हेडेड प्लेयर्स को नर्चर कर सके. कोई भी नहीं है. देयर इज नो वन दे कैन लुक अप टू, एंड तभी प्लेयर्स का डिसिप्लिन खराब होता है. वी कैन ऑल्सो मेंशन वेस्ली फोफाना. अब उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी हो रहा है, बट आई वुड हैव टू मेंशन हियर कि जो लाइसेंस पे उन्होंने अपने पॉइंट्स करे हुए हैं, राइट? व्हाट डज दैट शो? कि उनमें पेशेंस नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पिच एज वेल, क्योंकि वेस्ली फोफाना भी कोई बढ़िया तो कर नहीं रहे, राइट? तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मतलब अगर आप देखो येलो कार्ड्स, रेड कार्ड्स, अपने आप को कूल ना रख पाना सिचुएशन में, लड़ाई लेते रहना, फालतू के कार्ड्स लेना, all this shows a discipline action. अभी चेल्सी ने बहुत रिसेंटली एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, बट इट टुक देम 4 freaking years to realize कि चेल्सी में ये प्रॉब्लम है. एंड अभी भी इसका कोई क्योर नहीं हुआ है, बाय द वे. नो क्योर हैज बीन पुट इन प्लेस.
And which brings me to the third problem, right? And the third problem according to me would be the yes man culture. हम बात कर रहे हैं ना कि ये जो 4 years तक इनको टाइम लग गया ये इम्पोज करने में, क्यों लगा? बिकॉज यहाँ चेल्सी फुटबॉल क्लब में एक येस मैन कल्चर है. जो ओनर्स बोलेंगे वो एक टॉप टू डाउन अप्रोच है, एंड कोई ऊपर तू नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता. मतलब मैं जैसे स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते ओनर्स को, वो चू भी नहीं कर सकते कि भाई आप गलत हो, आप मेरे अकॉर्डिंग चल लो, मैं आपको कुछ बेटर वे बता रहा हूँ. नहीं नहीं, जो ओनर ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, वो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड ये फ्लो होता है. स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स ऊपर की सुनते हैं. स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स की किसको सुननी पड़ती है? मैनेजर को. मैनेजर स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को कुछ नहीं बोल सकता है, मैनेजर ओनर्स को कुछ नहीं बोल सकता है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स ओनर्स को कुछ नहीं बोल सकते हैं. तो यहाँ पे एक यस मैन कल्चर हो गया है, जहां पे बस हाँ हाँ सर, यस यस सर, ओके सर, ये सब होता है. देर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एनी लेवल. बस एक डिसीजन है जो ओनर्स बोल देते हैं, वो बॉटम तक आता है, ठीक है, एंड वो यस, ओके सर, श्योर सर, ये सब करके आ जाता है बॉटम लेवल पे. एंड कोई क्वेश्चंस आस्क नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एंड दैट हैज रूइंड दिस क्लब. दैट हैज रूइंड दिस क्लब. एंड अगर अकाउंटेबिलिटी के लिए आप बोलते हो, मरेस्का आस्क्ड, मरेस्का ने कितनी बार आके बोला, वी हैड रिपोर्ट्स ऑफ हिम कमिंग आउट सेइंग कि दिस क्लब नीड्स अ सेंटर बैक, कॉलविल इज इंजर्ड, कॉलविल को एसीएल हो गया, ये वो. क्या करा डायरेक्टर्स ने? कुछ नहीं, बिकॉज उनको ओनर्स ने कुछ करने के लिए नहीं बोला. तो यस मैन कल्चर है ना, यस मैन कल्चर. एंड जब कोई मैनेजर उस यस मैन कल्चर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जैसे मरेस्का ने ट्राई किया उस यस मैन कल्चर से बाहर आने के लिए, तो उसको निकाल दिया जाता है कि भाई तूने मेरे अगेंस्ट चू कैसे कर दी, तूने मेरे अगेंस्ट बोल कैसे दिया. क्यों है रोसिनर अभी जॉब में? आपने सोचा है कभी? बिकॉज ही इज अ यस मैन. वो यस यस, ओके सर, श्योर सर, डन सर, ये सब कर रहा है बैठ के. मरेस्का जब तक वो कर रहा था, ओके सर, यस सर, तब तक ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज वेरी टॉप क्लास मैनेजर. लेकिन जब उसने ये करना बंद कर दिया, इट वॉज डन, इट वॉज डन भाई. मतलब तुम सोच के देखो, ही वॉज फायर्ड. एंड जिस दिन रोसिनर ने भी करना बंद कर दिया ना, इट्स डन. रोसिनर के साथ भी सेम होगा. It would be done. He would be gone the day he does a chew against these owners. That is the reality. That is the yes man culture at this football club now. There is no denying that. And that is what leads me to the fourth point, which is the ownership. अब ओनरशिप पे भाई बहुत बातें बोल चुके हैं. यस वी नो इकबाली, यस वी नो टॉड बोली, इन्होंने क्लब को खराब कर दिया है. कल्चर हटा के जो सोल होता है ना क्लब का, वो सक कर लिया इन्होंने. मतलब आई एज अ फैन फील सो डिस्कनेक्टेड टू द क्लब, जो कि मैंने मैचेस नहीं भी देखे अभी लास्ट पीएसजी वाले, बट इफ आई हैड वॉच्ड, और मैं सेकंड लेग में सोच के भी नहीं जाता मैं कभी कि कमबैक हो जाएगा, सोचता भी नहीं मैं कभी, because I knew it wasn't going to happen. There is no Maresca in the dugout, there is no experience there is no one who wants to play. That is the issue, that is the problem bhai. No one in that squad would have believed themselves कि comeback हो सकता है. पहली बात तो as fans we knew नहीं हो सकता है, and that is what these owners have done. इन्हें soul suck कर लिया है क्लब का. एंड तुम स्टेडियम की बात कर लो, रेनोवेशन प्लान्स की, वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं इनके, कुछ भी नहीं हुआ है यार, कुछ भी नहीं हुआ है. एंड दीज ओनर्स हैव जस्ट रूइंड इट ऑल. अब फिफ्थ रीजन भी मैं यहीं पे डालूंगा, तुम कह सकते हो मिक्स्ड है, बट फिफ्थ रीजन इज द क्लब ट्रांसफर पॉलिसी. इट इज द ट्रांसफर पॉलिसी. व्हाई? बिकॉज ट्रांसफर पॉलिसी किसकी है? ओनर्स की है. लोग किसको हायर किए? जो ये सब डिसीजंस कर रहे हैं वो ओनर्स ने हायर किए, ओनर्स ही सब कराते हैं. भाई ट्रांसफर पॉलिसी इज सो बैड, इट इज so bad. You won't sign someone above 25, you won't give them their wage. If you need top players, you need experience, you need to get someone in who is above 25, you need to pay them good salaries, but these guys will not do it. These guys only want to make profits by selling young players for more profit. इधर का उधर कर दिया, 10 million ज्यादा कमा लिया, 15 million उस पे ज्यादा कमा लिया. That is what they want to do, and that is the main problem. That is the main issue with these guys. They will not change, and the transfer policy of this club is in shambles. And अभी भी तुम देखोगे कोई 16 साल के लड़के से लिंक आ जाएगी for no reason, absolutely. ठीक है? तो yes, Bluco out. They have killed Chelsea. These are the reasons why Chelsea Football Club, no, not Chelsea Football Club, CFC LDN is dead. Chelsea Football Club will live forever. CFC LDN, CFC London जो इनका था, that is dead. Chelsea Football Club will outlive all of us. Thank you so much for watching. Let me know your thoughts down below. Like कर देना, subscribe कर देना. Bye bye.